خیر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں۔ اور یہ وہ تاریخی لمحہ، تاریخی دن جس کا پوری دنیا انتظار کر رہی تھی۔ مقام ہے سوئٹزرلینڈ کا لیکن نام ہے اسلام آباد کا، پاکستان کا۔ اسلام آباد ٹاکس، اسلام آباد ریکارڈ کے حوالے سے ایم او یو سائن ہوا امریکہ، ایران اور پاکستان کی ثالثی میں، اور اس کے بعد تکنیکی مذاکرات کے حوالے سے حتمی مرحلے کا باقاعدہ کل آغاز ہوا، جب وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں پاکستانی وفد نے دونوں فریقین کو خوش آمدید کہا لیکرسن سوئٹزرلینڈ میں۔ اور اس موقع پر ایک اور ثالث قطر، پاکستان کا برادر ملک، اس کے وزیر اعظم بھی وہاں پر موجود تھے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کل کے سمٹ کے آغاز پہ جو گفتگو کی، اس میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے شکریہ ادا کیا دونوں فریقین کا پاکستان پر اعتماد کا اظہار کرنے پر۔ اس کے ساتھ ساتھ برادر ملک قطر کے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا، انہوں نے ثالثی میں جو پاکستان کی حمایت کی، پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا۔ ساتھ ہی ساتھ دیگر تمام ممالک کا جنہوں نے اس مشکل مرحلے کو تکمیل کی جانب پہنچانے میں پاکستان کا ساتھ کیا، نہ صرف پاکستان کا ساتھ دیا بلکہ پاکستان کی حمایت بھی کی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان مئی 2025 کے بعد سے لے کے 2026 تک پاکستان نے جس طرح سے دنیا میں قیام امن کے لیے کردار ادا کیا۔ برتری کے بعد بھارت کے خلاف پاکستان نے جنگ بندی پر آمادگی ظاہر کی، اس وقت بھی پاکستان نے قیام امن کو ہی ترجیح دی، اور اب 2026 میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جون کا وہ مہینہ ہے جب پاکستان کی قیادت نے نہ صرف امریکہ، ایران جنگ بندی ممکن بنائی بلکہ اس کو مستقل جنگ بندی میں تبدیل کرتے ہوئے قیام امن کی راہ تلاش کرتے ہوئے تکنیکی سطح کے مذاکرات 5 دہائیاں گزرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایران اور امریکہ جیسے حریف آمنے سامنے بیٹھ کر تمام مسائل کا حل بات چیت کے ذریعے نکالنے پر آمادہ ہوئے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف، فیلڈ مارشل سیراج سے منیر، پاکستان کی قیادت جس میں نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی اور تمام سفارتی عملہ پاکستان کا وہ دوست ممالک میں موجود ہوں یا پھر ان ممالک میں موجود ہوں جن کے آپس میں تنازعات تھے، شاندار کردار ادا کیا اور اس کو پوری دنیا میں سراہا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کل گفتگو کرتے ہوئے دونوں فریقین کا شکریہ ادا کیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش کیا، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے خراج تحسین پیش کیا ان کی مدبرانہ قیادت کے حوالے سے، ان کی امن پسندی کے حوالے سے، جس طرح سے پاکستان بھارت کانفلکٹ میں انہوں نے کردار ادا کیا، اور اس کے بعد ایران امریکہ تنازع میں پاکستان کی درخواست پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے جنگ بندی کا آمادگی ظاہر کیا اور حملے روکے۔ دوسری جانب ایران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور ایران برادر ممالک ہیں، ایران نے پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا، پاکستان کی درخواست پر ریسٹرین کا مظاہرہ کیا، اور اس کے بعد مذاکرات کے حوالے سے جو پیش رفت ہوئی، اسلام آباد ٹاکس جو کہ اپریل میں ہوئے تھے، اس کے بعد یہ سلسلہ تواتر سے جاری رہا۔ میڈیا میں بہت ساری فیک نیوز آتی رہیں، بہت سارے ایسے سپوائلرز کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ ان مذاکرات کو سبوتاژ کیا جا سکے، لیکن امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے کل گفتگو کرتے ہوئے فیلڈ مارشل سیراج سے منیر کے کردار کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اس بات کا انہوں نے اکنالجمنٹ دی کہ جتنی بات میری فیلڈ مارشل سے ہوئی ہے کسی اور سے نہیں ہوئی، اور فیلڈ مارشل نے جس حکمت عملی کے ساتھ تمام معاملات کو آگے بڑھایا، انہوں نے نہ صرف ایک شاندار ملٹری لیڈر کا کردار ادا کیا بلکہ ایک بہترین سفارتکار کا کردار بھی ادا کیا، اور انہوں نے اسٹیٹسمین شپ کا خطاب دیا فیلڈ مارشل سیراج سے منیر کو، اور کہا کہ یہ ان کی حکمت عملی کی وجہ سے ممکن ہوا ہے کہ آج ہم سب سوئٹزرلینڈ میں موجود ہیں۔ گزشتہ رات پاکستان کے میزبانی میں یہ مذاکرات ہوئے سوئٹزرلینڈ میں، اور اس کے بعد پہلا اعلامیہ آج صبح جاری کیا گیا، اور تقریباً 12 گھنٹے کے مذاکرات میں فائنلائز جو چیزیں ہوئی ہیں اس میں بہت سارے ایسے پہلو ہیں جو کہ تنازع کا باعث بن رہے تھے، اور ان پر باقاعدہ مذاکرات ہوں گے۔ اعلیٰ سطح کی کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں، نگرانی گروپ تشکیل دیا گیا ہے، ڈی کنفلکشن کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں لبنان کو شامل کیا گیا ہے۔ کچھ ایسی خبریں بھی سامنے آئیں کہ شاید یہ مذاکرات تعطل کا شکار ہیں، لیکن پاکستان ٹیلی ویژن نیوز نے انتہائی ذمہ داری کے ساتھ ان تمام مذاکرات کے حوالے سے لمحہ بلمحہ آپ کو آگاہ رکھا، اور جو مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے اس حوالے سے جو اعلامیہ جاری ہوا ہے، آپ اس حوالے سے بھی پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی ٹرانسمیشن سے یقینی طور پر آپ تک انفارمیشن پہنچی ہوگی کہ اس اعلامیہ میں جو ابھی تک چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو کہ دونوں ثالثکاروں پاکستان اور قطر کو رپورٹ کرے گی، امریکہ کی جانب سے بھی اور ایران کی جانب سے بھی۔ پھر ان مذاکرات کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر تکنیکی کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں جو کہ نہ صرف ایٹمی ہتھیاروں پر بات کریں گی بلکہ ایران کی تجارت کے حوالے سے، ایران میں دوبارہ سے تعمیر نو کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ساتھ ایران کے منجمد جو اثاثے ہیں ان کی بحالی کے حوالے سے بھی بات چیت کی جائے گی۔
عباس عراقچی کی جانب سے ایکس پر ایک پیغام جاری کیا گیا آج صبح اعلامیہ کے بعد، اور یقینی طور پر بہت ہی حوصلہ افزا، بہت مثبت وہ ایکس پیغام، جس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ سے ہونے والے مذاکرات انتہائی نتیجہ خیز رہے، اور پہلے مرحلے میں جو مذاکرات ہوئے ہیں اس کے بعد پیٹرو کیمیکل کے حوالے سے پابندیاں ختم ہونے کی نوید ہے، ساتھ ساتھ اثاثوں کی بحالی کے حوالے سے بھی نوید ہے، خوشخبری ہے، جبکہ ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے ایرانی قیادت کا موقف ہے کہ ان کے رہبر اعلیٰ اور سید علی خامنہئی نے اس بات کا بارہا اعادہ کیا تھا کہ ہم ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کریں گے، نہ ہی ہمارا کوئی ارادہ ہے، تاہم ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے امریکہ کو یقین دہانی چاہیے۔ اب بات کریں گے ان تمام تر معاملات پر۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار شنیلا عمار صاحبہ۔ شنیلا، صبح خیر اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نہایت ہی خوشگوار صبح ہے، صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے، کہ امن کو جو موقع ملا تھا اس موقع سے بھرپور استفادہ کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ رضوان، آپ کی بات بالکل درست ہے۔ دیکھیں 2 دن پہلے جب لبنان کے اوپر دوبارہ سے اسرائیل نے حملہ کر دیا تو سب کو یہی لگنا شروع ہو گیا تھا کہ یہ ایم او یو تو جو ہے وہ سائن تو ہو گیا ہے، لیکن شاید جو آگے مذاکرات چلنے جس میں 60 دنوں کے اندر جو چیزیں تھیں ان کو فائنلائز کرنا ہے اور ایک حتمی معاہدے کی طرف جانا تھا، وہ اب کھٹائی میں معاملہ پڑ گیا۔ لیکن جس طرح پاکستان نے اس جنگ کو روکنے میں کردار ادا کیا، اور سب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس نے تھرڈ ورلڈ وار کو روک دیا ہے، تو اسی طرح پاکستان کی یہ کوشش تھی کہ دوبارہ وہ لوگ پھر مل بیٹھے سوئٹزرلینڈ کے اندر پاکستان اور قطر کی ثالثی میں، اور انہوں نے بات کو جہاں پہ ایم او یو ختم ہوا تھا وہاں سے آگے کے معاملات کو جو ہے سٹارٹ کیا۔ اور رات تک بہت سی ایسی خبریں آ رہی تھی کہ ایک پیغام بھی ایکچولی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا آیا تھا ایکس کے اوپر، جس میں انہوں نے ایک دھمکی دی ایران کو، تو اس کے بعد یہی بات سامنے آ رہی تھی کہ جی ایران جو ہے وہ مذاکرات سے چلا گیا، یہ پروٹیسٹ کر رہا ہے، مذاکرات کھٹائی میں پڑ گئے۔ لیکن آج صبح 6 بجے یہ جو اعلامیہ سامنے آیا ہے، اس نے پھر لوگوں کو ایک امید دلا دی ہے کہ معاملات ختم نہیں ہوئے، معاملات آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں جو پاکستان کا کردار ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان نے طاقت کی تعریف بدلی ہے اس کے ذریعے۔ پہلے ہم یہ دیکھتے تھے جو سپر پاور ہے، جس کے پاس بہت ہتھیار ہے، بڑے معاشی طور پہ بڑا مضبوط ملک ہے، جی وہ طاقتور ہے، لیکن اب یہ چیز سمجھ آ رہی ہے کہ جس ملک کا اثر و رسوخ زیادہ ہے، جس ملک کی پاس حکمت عملی ہے، جو ملک لوگوں کو مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر لا سکتا ہے، وہی اصل میں طاقتور ملک ہوتا ہے، اور پاکستان نے یہ کر دکھایا ہے۔ 2 ملک جن کے اندر 50 سال سے زیادہ بد اعتمادی کا ایک وہ معاملہ چل رہا تھا، یہ جنگ اس کے اوپر جو تھی مسلط کی گئی تھی، اسرائیل بیچ میں سپوائلر تھا، اس نے دھکیلا ایران کو، امریکہ کو اس جنگ کے اندر، اور معاملات لگ نہیں رہے تھے کہ کہیں ایسی جگہ پہ سیٹل ہوں گے، بلکہ یہ لگ رہا تھا کہ شاید تھرڈ ورلڈ وار کی طرف معاملہ تھوڑا سا اگر ہم ماضی میں دیکھیں، جب اسلام آباد ٹاکس کے لیے دونوں ممالک کے وفود پاکستان آئے، دنیا بھر کا میڈیا پاکستان آیا تھا، ہم اپریل کی بات کر رہے ہیں، تو تب بھی بہت جلد بازی میں توقعات وابستہ کی گئی تھی کہ شاید پہلی ہی ملاقات میں مذاکرات میں کچھ پیش رفت ہو جائے گی اور حتمی نتیجے پہ پہنچا جائے گا، لیکن اس وقت پاکستان کی قیادت نے بھی اور جے ڈی وینس نے بھی، دوسری جانب سے ایران کے اسپیکر باقر غالباف نے بھی اس بات کا اظہار کیا تھا کہ جتنے پیچیدہ معاملات ہیں اس میں وقت لگے گا، پیش رفت تو ہوئی ہے لیکن حتمی نتیجے تک پہنچنے پر اور کسی ایک نقطے پر، وہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ون ون سچویشن پر پہنچنے میں ہمیں وقت لگے گا، تو ابھی اس میں بھی وقت لگے گا، مزید وقت جائے گا اس نتیجے پر پہنچنے کے لیے؟ دیکھیں ایسا ہی ہوتا ہے، ایکچولی اس وقت بھی بہت اعلیٰ قیادت آئی تھی نا، تو لوگوں کی امیدیں بہت زیادہ اس کے ساتھ جڑ گئی تھی، اور ان کو لگتا تھا کہ کسی ضروری نہیں کہ کسی حتمی ایگریمنٹ کے اوپر جائیں گے، لیکن کچھ نہ کچھ ایسی چیز سامنے آ جائے گی کہ جس سے معاملات بالکل ختم نہیں ہو جائیں گے۔ لیکن وہ رات تک معاملات بالکل ٹھیک چلتے رہے، صبح کچھ ایسی ریجٹنسلی جو تھی نا وہ ان کی طرف سے جے ڈی وینس کی سامنے آئی، کچھ معاملات کے اوپر بالکل وہ ریجٹ ہو گئے تھے، اس کی وجہ سے معاملات بالکل ختم ہو گئے۔ لیکن یہاں پہ پھر پاکستان کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے اس معاملات کو زیرو پہ نہیں جانے دیا، وہ اپنی ڈپلومیسی جو تھی بیک ڈور ان کی چلتی رہی۔ دیکھیں 2-3 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ حملے بھی بڑے شدید قسم کے ایران کے اوپر ہوئے ہیں جے ڈی وینس کے آنے کے بعد اور اس ایم او یو سائن ہونے کے درمیان، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے ایسی دھمکیاں بھی دی گئی کہ آج رات ایسا حملہ ہوگا کہ سیولائزیشن بالکل ختم ہو جائے گی، ایران کو ہم تباہ کر دیں گے، لیکن اس کے بعد اگلے دن پھر ان کی ٹویٹ آ جاتی تھی کہ نہیں، ہم نے پاکستان کے کہنے کے اوپر اس کو روک دیا ہے، کیونکہ بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی تھی، اور اسی بیک ڈور ڈپلومیسی کی وجہ سے ہی ایم او یو جو ہے وہ سائن ہوا ہے۔ معاملات اتنی جلدی دیکھیں رضوان نہیں ختم ہوں گے، کیونکہ بہت سی چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ جو جوہری ہتھیار کا معاملہ ہے وہ تو ایران پہلے دن سے ہی اعلان کر رہا ہے، اور اس نے بارہا یہ بات کہی ہے کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے جوہری ہتھیار بنانے کا، لیکن دیکھیں مثبت کاموں کے لیے تو اگر وہ جو اس میں ایٹمی قوت حاصل کرنا چاہتا ہے
एटम बम बनाने के लिए नहीं, लेकिन बहुत से ऐसे मामलात होते हैं जिसके लिए एटॉमिक कुव्वत अगर अपनी मुस्बत कामुल के लिए इस्तेमाल करना चाहे तो वो उनका हक होगा। लेकिन आगे एसेट्स जो फ्रीज करने हैं उसके ऊपर भी अभी बहुत सी चीजें तय होने, क्योंकि अमेरिका ये कह रहा है कि हम अभी इसको फ्रीज जो एसेट है अनफ्रीज नहीं करेंगे। फिर उसके बाद जो रिहेबिलिटेशन के लिए 300 अरब डॉलर की बात हो रही है, तो वो भी ये होगा कि वो जो जीसीसी के मुमालिक है वो देंगे, लेकिन अमेरिकन कंपनियां होंगी वो आएंगी, उसका भी एक मोडालिटी आपने तय करनी है, कंपनियां कौन सी होंगी, किस मुल्क के जरिए दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, ये सारे को। फिर सबसे बड़ा मसला है यूरेनियम का, यूरेनियम एनरिचमेंट का, कि वो कम की जाएगी, बिल्कुल तलफ कर दी जाएगी या अमेरिका के हवाले कर दी जाएगी। तो बहुत से मामला थे जिसको तय करना है। फिर लबनान का भी मामला है। आपने कहा कि सिविल पर्पसेस के लिए जो इस तवानाई का हुसूल है, उसका इस्तेमाल है, सेहत के मामलात हों या तवानाई के हवाले से हों, मेडिकल के लिए हों, तो उसके लिए ईरान का जो हक है, जो यूनाइटेड नेशंस की जानिब से एक हतमी तय किया गया है, एक नुक्ता 3.6 का, तो वहाँ तक वो उसको इनरिच कर सकते हैं, हुसूल कर सकते हैं। तो इस पर हम मज़ीद आगे भी बात करेंगे। मुदस्सर चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तज्ज़ियाकार हैं, स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुदस्सर साहब बहुत शुक्रिया। फाइनली एक मुफाहमत की याददाश्त के बाद डिक्लेरेशन जो कि हम स्विट्ज़रलैंड से आज सुबह पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही अच्छी और खुशखबरी की बात थी कि पाकिस्तान की सालसी में कल कतर ने भी एक्नॉलेज कर लिया। बहुत सारी खबरें ऐसी आ रही थी, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि शायद पाकिस्तान के इस किरदार को हज़म नहीं कर पा रहे, शायद वो हमारा हमसाया मुल्क भारत हो, स्पॉइलर इसराइल हो, या फिर कुछ ऐसे अनासर जिन्हें पाकिस्तान के नाम से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, जलन होती है, लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से कामयाबियों पे कामयाबियाँ समेट रहा है। और इसमें पाकिस्तान की क़यादत का बहुत शानदार किरदार है, बहुत मुदब्बराना, मुस्तकिल मिजाजी के साथ, तहम्मुल के साथ, बर्दबारी के साथ, दोनों फ़रीक़ैन के एतराज़ात को दूर करते हुए, उनको सुनते हुए, उन तक पैगामात पहुँचाते हुए फाइनली इस मामले पर ले आए कि एक ऐसी कमेटी तश्कील दी जा रही है जो कि न सिर्फ लबनान में जंगबंदी के खात्मे को, जंगबंदी को यकीनी बनाएगी, जंग के खात्मे को यकीनी बनाएगी, बल्कि ईरान अमेरिका तनाज़े को हमेशा के लिए सेटल करने के हवाले से बातचीत को आगे बढ़ाएगी। अब इसमें उनके असासों की गैर मुंजमद करना, या फिर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के हवाले से जैसे शनीरा बात कर रही थी, या फिर हम बात देखते हैं न्यूक्लियर एसेट्स के हवाले से। ईरान की तिजारत पर बहुत सारी पाबंदियाँ आई थी, आलमी पाबंदियाँ आई थी, जिसकी वजह से ईरान तिजारत नहीं कर सकता था। कल हमने मसूद पज़ेश्कियान का एक तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि पेट्रोकेमिकल की मद में 16 मिलियन बैरल तेल जो है वो ईरान एक्सपोर्ट कर चुका है जब से इस मुफाहमत याददाश्त पर इलेक्ट्रिक दस्तखत हुए हैं पाकिस्तान की जानिब से, अमेरिका और ईरान की जानिब से। उसके बाद से ये पाबंदियाँ अब ख़त्म हो रही हैं। इराक़ची साहब का अभी कुछ देर पहले एक्स पर बयान आया जिसमें उन्होंने एक खुशखबरी सुनाई है कि बहुत सारी पाबंदियाँ ख़त्म हो गई हैं और बहुत सारी पाबंदियाँ जल्द ख़त्म हो जाएगी। तो मुदस्सर साहब, पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है, ये पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की कामयाबी है। अब जैसे शनीला कह रही थी कि अब ताकत का मरकज़ वो होगा जो कि निगोशिएट करवा सकता है, मीडिएट कर सकता है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। बड़ी तफसील के साथ आपने नाजरीन को बहुत कुछ बता दिया। आपने शुरू में जो बात की ना कि पूरी दुनिया खुश है, चंद लोग हैं जो नहीं खुश हैं। दो ही ममालिक हैं, एक इंडिया और एक इसराइल है। तीसरे वो कुछ लोग हैं जिनको पाकिस्तान की, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता, उनको पाकिस्तान की खुशी जो है वो हज़म नहीं होती। बहरहाल इन सारी चीज़ों के कदर नज़र कल का दिन और आज का दिन पूरी दुनिया के लिए खुशी का समा था। इससे सिर्फ ना ये सिर्फ खित्ता मुतासर था, पूरी दुनिया में हर शख्स इससे मुतासर हुआ। और एक अगर पाकिस्तान उस वक़्त एक कदम आगे ना बढ़ाता, जहाँ बड़े बड़े ममालिक जिन पीछे हट रहे थे, खामोश थे, सोच रहे थे कि क्या करें, इतने बड़े पैमाने पे जंग जो है वो शुरू कर दी गई है, तो पाकिस्तान आगे बढ़ा और ना सिर्फ इस खित्ते को महफूज किया बल्कि मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया को महफूज रखा। क्योंकि जिस अंदाज में आगे बड़ी चीज़ें, लग रहा था कि ये बात तो बहुत दूर तक चली जाएगी। और पाकिस्तान के इस किरदार के हवाले से, पाकिस्तान की इस मीडिएशन के हवाले से और ताकत के मंबा के हवाले से, नो डाउट आप जब अमन की बात करते हैं और पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें, ये सिर्फ इस मामले में नहीं, दुनिया में कहीं पे भी कोई कन्फ्लिक्ट हुआ, सबसे पहले अगर बात की तो पाकिस्तान ने की और अमन की बात की और किसी एक साइड नहीं ली। यहाँ भी पाकिस्तान इसीलिए कामयाब हुआ कि पाकिस्तान ना ईरान की साइड ले रहा था, ना अमेरिका की साइड ले रहा था। साइड थी तो अमन की साइड थी, और अमन कराने वाले हमेशा ही डोमिनेट करते हैं। और इस बात को आप ये देखिए कि हम चंद साल पहले सुनते थे कि पाकिस्तान के ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू शायद ही कहीं नज़र आ रही हो, और अक्सर हम मीम्स देखते थे, वीडियोस देखते थे,
बड़े लंबे लंबे लेक्चर और तज़िये हम सुना भी करते थे और पढ़ा भी करते थे। जी पाकिस्तान का पासपोर्ट इतने नंबर पे चला गया, एयरपोर्ट पे दिखाते हैं तो ये सूरत हाल पेश आती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वही पासपोर्ट है, वही ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जब वो लहराते हुए वीडियो बनाते हैं और बताते हैं पाकिस्तान का कि हम पाकिस्तान से हैं और हम उस पाकिस्तान से हैं जिनने दुनिया को एक बड़ी जंग से से। थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा कि आपने जिक्र किया ना कि पाकिस्तानी अपना पासपोर्ट दिखाते हैं फ़ख्र से, ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू में जहाँ इजाफा हुआ है, तो वहीं पर दूसरे ममालिक में मौजूद ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं किस तरह से उन ममालिक के जो शहरी हैं वो पाकिस्तानियों को देख कर मुस्बत पैगाम देते हैं, खुशी का इजहार करते हैं कि आर यू फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान हैज़ डन अ ग्रेट जॉब, पाकिस्तान ने दुनिया को एक बड़ी जंग से बचा लिया है। तो इस तरह के कमेंट्स भी यकीनी तौर पर हमारा कद भी बढ़ाते हैं, हमारा खून भी बढ़ाते हैं। रिजवान, मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ। मैं लास्ट मंथ जो थी यूरोप गई हुई थी, तो वहाँ पर मैं उबर में बैठी हूँ, तो उसका एक फ्रेंच ड्राइवर था। उसने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से आई हैं, मैंने कहा मैं पाकिस्तान से आई। तो उसने कहा पाकिस्तान इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। तो यहाँ तक आप देखें कि आप उनके हाई लेवल के ऊपर जो लोग हैं उनके पास जाएं या आप उनके नीचे जो नीचे वाले लोग हैं उनके पास जाएं, हर जगह पे पाकिस्तान की इज्जत थी और हर बंदा जो था वो जान रहा था कि पाकिस्तान क्या कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान किस तरह दुनिया को बचा रहा है, क्योंकि ये वो जंग थी जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो थी ना उसको तलट पलट करके रख दिया हुआ था और हर कोई इस जंग की वजह से तंग था क्योंकि इकोनॉमी तबाह हो रही थी। इससे पहले भी जंगें हमने देखी, हमने अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका की जंग थी, वियतनाम के अंदर अमेरिका की जंग थी, लेकिन उससे दुनिया की इकोनॉमी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आबनाए हुर्मुज़ बंद होने की वजह से आपकी तेल की जो तरसील थी वो रुक गई थी, आपकी खादों की केमिकल्स वगैरह की तरसील जो थी वो रुक गई हुई थी, जिसने दुनिया को बड़े जो था प्रॉब्लम्स में डाल दिया था। और ये IMF और वर्ल्ड बैंक प्रेडिक्ट कर रहे थे कि अगर ये जंग नहीं रुकती तो इस साल के एंड तक जो तेल है वो $200 पर बैरल के ऊपर चला जाएगा और 30% से ज्यादा दुनिया की आबादी जो खतरे गुर्बत से नीचे चली जाएगी, कहत साली का वो हो सकता है। तो ये वो सारी सिनेरियो था जिसके अंदर पाकिस्तान ने इंटरवीन किया और पाकिस्तान ने जाके इस सारे मामलात को हैंडल किया। इसी वजह से दुनिया सारी जो है पाकिस्तान की शुक्रगुजार है। चौधरी साहब देखिए बिल्कुल सही कह रही, वैसा ही है। आप अगर पाकिस्तान आगे ना बढ़ता और फिर ये जो दरमियान में बातें आई ना कि जंग रुक नहीं रही, पाकिस्तान का किरदार कोई गैर अहम है, वैसे बातें बनी थी, तो उन लोगों को समझने की ज़रूरत है कि ये तकरीबन इस जंग को अगर कहा जाए, इस दूरी को कहा जाए, जिसको 50 साल हो चुके तकरीबन, वैसे तो 46-47 ईयर का कहा जाता है, 50 साल की जंग और उसको इस तरह से इकट्ठा करके लाना बिठाना और फिर इस किस्म का कि एक साइड पे आपने बमबारी करके एक शहर को तबाह किया और दूसरी तरफ से अमेरिकन जो अड्डे हैं उनको तबाह किया गया हो और इसराइल तक आपने मिसाइल पहुँचाए हों, उनको टेबल पे बिठा देना पहली बार एक ये बहुत बड़ा कारनामा था। और पाकिस्तान अच्छा, हम मुदस्सर चौधरी साहब अब चूँकि खुशी का समय है और हम देखते हैं कि जब खुशी के हवाले से कहीं सब लोग इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पर मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी रहता है और हम अपने नाज़रीन को आगाह करते चलें कि माहिर बैनुल-अक़वामी डॉक्टर हसन फारूक साहब ने हमें वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर, यकीनी तौर पर जिस तरह से हमारे तज्ज़ियाकार बात कर रहे हैं और हम भी बात कर रहे हैं, ये इस तारीख़ी लम्हे के हवाले से, इस खुशी के हवाले से, पाकिस्तान के किरदार के हवाले से, और पाकिस्तान के किरदार मज़ीद बढ़ गया है जब दुनिया पाकिस्तान की बात सुन रही है। जी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस बहुत अहम मौजू पे बात करने का मौका फराहम किया। देखिए, अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की हालिया तारीख देखी जाए और उसका बहुत मुतालिया किया जाए तो मेरे नॉलेज के मुताबिक जब वर्ल्ड वॉर 1 थी उस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट थे वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन को उस वक्त एम्बेसडर ऑफ पीस और एम्बेसडर ऑफ फ्रीडम्स कहा जाता था, क्योंकि वुडरो विल्सन जो है वो ट्रूली दुनिया से जंगों का खात्मा चाहते थे। वो ये चाहते थे कि द वर्ल्ड वॉर 1 शुड बी द वॉर टू एंड ऑल अदर वॉर्स। उसके बाद अगर देखी जाए तो मेरे नॉलेज के मुताबिक इतनी संजीदा, इतनी मुदब्बिराना कोशिशें अमन की मेरे नॉलेज में इंटरनेशनल पॉलिटिकल हिस्ट्री की हालिया 100-150 तारीख में मुझे नहीं मिलती जी। मैं यानी बड़ा एक कैटेगोरिकली ये बात कर रहा हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान ने इस मिडिल ईस्ट क्राइसिस को इसको खत्म करने के लिए, इसको एक पीस डील की तरफ लेके जाने के लिए, जिस तरह पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री लीडरशिप ने जिस सिंसियरिटी के साथ और जिस इंथुजियाज्म के साथ कोशिशें की हैं, मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के पास शायद एतराफ और तारीफ के अलावा कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। उसकी रीजन ये है कि देखें, ये जो वॉर थी, उससे पहले आपके जो होस्ट थे वो ये फरमा रहे थे कि इसने इकोनॉमी को डिस्टर्ब किया। जी बिल्कुल इकोनॉमी को किया, लेकिन इसके साथ साथ देखें जो मिडिल ईस्ट है ये दुनिया का ट्रैवल एंड टूरिज्म का भी एक एपिसेंटर है। ये दुनिया में इस वक्त आप कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं ये उसका भी एपिसेंटर है।
तो आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में एक कंप्लीटली एक chaos की सिचुएशन थी। मैं खुद अपने डिपार्टमेंट के अंदर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हमने शेड्यूल किया हुआ था, तो हमारे जो गेस्ट थे वो नहीं आ पा रहे थे। तो पूरी दुनिया आप देखें कि कोई भी ऐसा इवेंट हो, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो ट्रेवल हो, चाहे वो टूरिज्म हो, उम्रा हो, कुछ भी हो, उसकी फ्लाइट्स, उसकी जो शेड्यूल थे वो बहुत बुरी तरह मुतासिर थे। इकोनॉमी का बड़ा प्रॉब्लम था, एनर्जी क्राइसिस जो है वो बहुत ज्यादा यानी डिस्टर्ब हो रही थी, कीमतें वगैरह। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ा एहसान किया है, न सिर्फ मिडिल ईस्ट के ऊपर बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर, क्योंकि ये जो अमन डील है, ये जो अमन डील है, ये मिडिल ईस्ट के लिए, पाकिस्तान के लिए, ईरान के लिए और पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम था। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं, उसकी जितनी तारीफ की जाए, यहाँ में हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उनको भी जो है ना, उनकी भी अपनी अप्रिसिएशन बनती है। नकवी साहब को, उन्होंने भी इसमें पूरा अपना रोल प्ले किया, हालांकि उनका पोर्टफोलियो नहीं है, लेकिन उन्होंने भी बहुत प्रोएक्टिवली, जैसे कहते हैं, अपनी डिप्लोमेटिक स्किल्स का जो है वो इजहार किया और उन्होंने दोनों पार्टीज को टेबल पे लेके आना और फिर उनके दरमियान में ऐसी बराह रास्त डायलॉग का प्रोसेस स्टार्ट करवाना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि ये भी कोई चंद हफ्ते या चंद महीनों की कॉन्फ्लिक्ट नहीं थी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान जो है वो इरानियन रेवोल्यूशन के बाद एक दूसरे से ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा जो है वो कम था। वो दोनों एक दूसरे पे किसी भी हवाले से ट्रस्ट नहीं कर सकते थे। और जैसा कि आपने साथ फरमाया कि यहाँ इस खित्ते के अंदर जो स्पॉयलर्स हैं उनका भी एक पूरा रोल रहा है कि किसी तरीके से इस डायलॉग प्रोसेस को डिरेल किया जाए, इसको सैबोटाज किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो मोदी और उसकी नेतन्याहू का जो नेक्सस है फादरलैंड और मदरलैंड वाला, वो उसके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि ये जो सारी चीज डील है और इसमें पाकिस्तान का जो रोल है वो उनसे हजम नहीं हो पा रहा और वो आगे भी यकीनन पूरी अपनी एफर्ट्स करते रहेंगे कि इसको किसी न किसी तरीके से डिरेल किया जाए। और पाकिस्तान के मैं समझता हूँ कि हिस्से में जो मेडल आया है, और यहाँ एक चीज और मैं बड़ी इंपॉर्टेंट जो है ना वो आपकी नाज़रीन की गोशगुजार करना चाहूंगा कि मैं ये समझता हूँ कि इस पूरे प्रोसेस में पाकिस्तान का पहला कमरा तो ये बनता है कि पाकिस्तान ने ईरान और यूएस जैसे राइवल्स के दरमियान में एक मुफाहमत करवाई है, एक डील करवाई है। पाकिस्तान को जो दूसरा मेडल मिलना चाहिए वो ये है कि इस पूरे मिडिल ईस्ट क्राइसिस के अंदर से जो शैतानी फोर्सेस हैं उसको भी पाकिस्तान ने दूर रखा है, उनकी एक नहीं चलने दी। उन्होंने आखिरी लम्हे तक अपनी कोशिशें की कि किसी तरीके से इस पूरे प्रोसेस को सैबोटाज किया जाए, लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने ये जो कारनामा सर अंजाम दिया है ये उससे बिल्कुल भी कम नहीं है जो पीस डील है। उन दोनों फोर्सेस को बाहर रखा है, उनको उनकी जो शैतानी वो है हरकतें हैं उनको यानी असरअंदाज नहीं होने दिया। बिल्कुल सही। अच्छा शर्नीला, जैसे अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि ये बायलैटरल रिलेशंस, ट्राइलेटरल रिलेशंस की बात नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट ईरान अमेरिका के दरमियान था, लेकिन इसमें और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स थे। जैसे हम बात करते हैं कि अगर ईरान पर जब हमलों का आगाज़ हुआ तो ईरान ने रिटेलिएशन में कतर पर अमेरिकन बेसिस को निशाना बनाया, सऊदी अरब, यूएई, दीगर ममालिक जो खत्ते में मौजूद हैं, तो वहाँ पर एस्केलेशन हो सकती थी और इसराइल की जानिब से भी ये कोशिश की गई कि एस्केलेशन बढ़े और खत्ते के दीगर ममालिक भी ईरान के ख़िलाफ़ उसी तरह से जो हाइपर एक्टिव किरदार है या फिर अग्रेसिव होकर ईरान के ऊपर हमले करें, तो उसको डी एस्केलेट करने के लिए पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है, पाकिस्तान ने अपने बरादर ममालिक से गुफ्तगू की, बातचीत की और उनसे अपील की तहम्मुल का मुजाहरा करने के लिए, ये कितनी इंपॉर्टेंट रही? पाकिस्तान का मल्टीलेटरल यहाँ पर किरदार सामने आता है। रिजवान, आपने ना बड़ा अच्छे सवाल पूछा है। एक्चुअली ये जो जंग हुई थी ना जिसमें इजराइल ने अमेरिका को धकेला है, इसका बुनियादी मकसद ही यही था कि इस्लामी ममालिक को आपस में लड़ा दिया जाए और पाकिस्तान इस साजिश को भांप चुका हुआ था। देखें, जब ईरान के ऊपर हमला हो रहा है और ईरान जो है वो इन जो अरब ममालिक है वहाँ पे जो अमेरिकन बेसिस है उनके ऊपर अटैक किया, उसने कतर पे भी किया, कुवैत के ऊपर, बहरीन के ऊपर, सऊदी अरब के भी किया। अगर ये तमाम ममालिक जो थे अगर वो रिटेलिएट कर देते और
प्रोसेस जो मुज़ाकरात का तो उसकी तरफ ना जाते तो क्या होता है, इस्लामी तहजीबें आपस में गुथम गुथा हो जाती। तो हम जहां पे पाकिस्तान के किरदार को अप्रिशिएट करिए, हमें जरूर करना चाहिए कतर को, कुवैत को, सऊदी अरब के किरदार को राज तहसीन पेश करना चाहिए कि उन्होंने सब्र का, तहम्मुल का, दरगुजर का जो है मुजाहिरा किया। उन्होंने हमला नहीं किया ईरान के ऊपर, उन्होंने कोई बदला नहीं लिया, बल्कि उन्होंने कहा कि नहीं हमें मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए, इस मामलात को अफ़ाम और तफ़हीम के साथ हल करना चाहिए। अब जब पाकिस्तान ने जो भी कोशिशें की हैं, उनको बैक के ऊपर कतर और सऊदी अरब की हमायत हासिल थी। सऊदी अरब के ऊपर में बड़ी यंग क़यादत है, बड़ी मेच्योरिटी का उन्होंने सबूत दिया, तहम्मुल का सबूत दिया, और उसकी वजह से ही ये मामलात आगे बढ़े। अगर जो इजराइल था, जो उसका स्पॉइलर का किरदार था और जो वो अपना एक एजेंडा लेके बैठा हुआ एक्सपेंड करने का कि आप ग्रेटर इसराइल का ख्वाब, आप देखें कि 1948 का इसराइल का नक्शा देखें और आज का देखें, वो जहां पे हमला करता है वहां पे कब्जा करके अपनी लैंड को बढ़ाता जाता है। तो उस जिस अपने नजरिए के ऊपर, एजेंडे के ऊपर कारबंद था, उसका यहाँ पे भी यही था कि एक तरफ हम ईरान को नुकसान पहुंचेगा, दूसरी तरफ ये मुमालिक आपस में जब गुथम गुथा हो जाएंगे तो ये हमें हमारे ऊपर इन्हिसार करते रहेंगे, हम पे डिपेंडेंट रहेंगे। वो चीज उसकी नहीं हुई है। पाकिस्तान ने बिल्कुल इजराइल को साइड पे कर दिया है। दरमियान में आपने देखा था कि एक दफा प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से एक आई भी थी, बात हुई थी, लेकिन और उस वक्त जो हुकूमत के मुखालिफ थे उन्होंने कहा था कि जी पाकिस्तान तो प्रेशर में आ जाएगा, पाकिस्तान मान लेगा, लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, जो इजराइल के ऊपर, फलस्तीन के ऊपर हमारा मौकिफ है, डे वन से हम उसके ऊपर कायम है। और उसी को देखे आगे चलाते हुए पाकिस्तान ने इजराइल को साइड पे किया, उसको एज अ मुबस्सिर भी टॉक्स के करीब नहीं आने दिया और हर चीज उसे छुपा के रखी। अभी उसने फिर अपना काम किया था कि जब उसने लबनान के ऊपर हमले किए, जबकि एमओयू में क्लियरली था कि लबनान के अंदर भी जंग बंदी होगी ईरान के साथ, उसने उसके ऊपर हमला कर दिया और उसको बड़ा सख्त किस्म का तनकीद का सामना करना पड़ा प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से। और ये पहली दफा ही हमने देखा है कि अमेरिकन कोई सदर जो है वो इतनी सख्ती के साथ इसके पीछे भी तो बहुत सारी रीजंस है ना। हम देखते हैं कि जैसे न्यूयॉर्क के मेयर ने बात की थी कि ज्यूज, जो अमेरिकन ज्यूज हैं, वो इसराइल को सपोर्ट नहीं करते क्योंकि ज्यूज जीनोसाइड के खिलाफ हैं। आप जो इसराइल ने गाज़ा में किया और उसके बाद लबनान में किया, दीगर ममालिक में किया, तो शायद उसके बाद से अमेरिकन पब्लिक का जो सेंटिमेंट है वो इसराइल के खिलाफ है। और उसी को भांपते हुए सदर ट्रंप ने इस मरतबा जिस तरह से जिस टोन में गुफ्तगू की इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के साथ और इसराइली क़यादत के साथ, तो उसके बाद वाज़ेह पैगाम था कि जो इसराइल चाहता है, जो इसराइल के मज़मूम मकासद हैं, उसके उसूल के लिए अमरीका इस्तेमाल नहीं होगा और अमरीका अमन चाहता है। और ये बात बड़े वाज़ेह दो टोक अंदाज में कही। मुदस्सिर चौधरी, ये बड़ा अहम एक फेज़ रहा, ख़ासतौर पर जब पाकिस्तान ने पहली जंगबंदी करवाई थी, जब अमरीकी सदर ने कहा था कि हम आज रात एक तहजीब को ख़त्म कर देंगे, एक तरह से एटमी वॉर या फिर एटॉमिक अटैक की पेशगोई भी की जा रही थी, ख़दशा जाहिर किया जा रहा था। तो पाकिस्तान ने उसी रात जो अपनी क़यादत के ज़रिए पाकिस्तान ने पैगाम पहुँचाया और उसको तस्लीम किया अमरीकी सदर ने, टर्निंग पॉइंट वही था और उसके बाद मुस्तकिल मिजाजी से मामला आगे बढ़ाए गए। देखिए, इस पूरी वॉर में तीन चीज़ें बहुत अहम हुई हैं पूरी दुनिया के लिए। एक जो भी आप बात कर रहे थे कि न्यूयॉर्क के मेयर ने बात की, ये सिर्फ न्यूयॉर्क के मेयर की बात नहीं, पूरा अमेरिका और उसकी तमाम स्टेट्स और तमाम जो थिंक टैंक हैं उसको पहली बार अंदाज़ा हुआ कि हमारा जो पूरा सिस्टम है वो ज्यूज के कहीं कब्ज़े में वो रन करते हैं, हमें इससे बाहर निकलना है। ये जो आखिरी बयान आते हैं ना ट्रंप के, जेडी वैंस के और सारे नेतन्याहू को शट अप कॉल करने के हवाले से कि अगर हम ना होते तो अभी तक तुम्हारा दुनिया भर में तुम अकेले हो और फिर भी हम तुम्हारा साथ देते हैं और फिर हमारी बात नहीं मानते हो, बार बार मांगना कि हमें नकात दें, किस पे सुलह हो रही है। तो ये शट अप कॉल देना, और मैं समझता हूँ अमेरिका के अंदर भी इसके बाद देखिएगा कि नई रेगुलेशन आपको नज़र आएगी कि वो लोग इस सार से बाहर निकलेंगे कि इसराइल है तो अमेरिका कायम है, अगर नहीं तो अमेरिका हट जाएगा। दूसरी बात अगर मैं बात करूँ तो आप बात कर रहे हैं ना, इसराइल एक ग्रेटर इसराइल की तरफ जा रहा था। पाकिस्तान ने जिस तरह अपने 9-10 मई को अपने दफा किया और इस खित्ते में अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी कि खबरदार को इधर नहीं देखेगा, इसी अंदाज में अगर आप इस वार को देखें ना, इसराइल आगे बढ़ रहा था ना सिर्फ मुस्लिम तहजीबों को आपस में लड़ाने के लिए, बल्कि जब ईरान के एक शहर को निशाना बनाया, मासूम बच्चों को शहीद किया गया बार बार इसराइली मीडिया की तरफ से, और फिर अमेरिकन मीडिया और ट्रंप बार बार लोगों को कहते रहे कि निकलो, कि हमने सफाई कर दी है, आप आओ और इक़्तिदार संभाल लो। एक मैसेज ये चला गया कि पाकिस्तान ने बड़ी हिकमत अमली के साथ इस इसराइल को इस पूरे खित्ते से दूर रखा। वो क्या थी वो आने वाले दिनों में आपको क्लियर हो जाएगी।
तीसरी जो बात सामने सबसे बड़ी आई कि ईरान ने पूरी दुनिया के छोटे और बड़े ममालिक को एक मैसेज दे दिया कि कौमें अगर खड़ी हो जाएं, कौमें अगर स्टैंड ले लें कि हमने दिफा करना है, तो फिर उनके लिए जानों का जाना, अमलाक का तबाह होना, ट्रेड रुक जाना, उनकी रिफाइनरीज तबाह हो जाना, एयरफोर्स तबाह हो जाना, नेवी तबाह हो जाना, पुलों का तबाह कर दिया जाना, वो मायने नहीं रखता। कौमें उसलिए खड़ी रहती हैं जब वो मजबूत रहें और उस सांस पे कायम रहे। और ईरान ने मेरे ख्याल में इस होल दुनिया में एक मैसेज दे दिया है कि जब आप पे कोई बिला वजह इश्तिहाल दिखाए, हमला कर दे और कब्जा करने की कोशिश करे या आपको अपने नजरियात के मुताबिक चलाने की कोशिश करे, तो आप खड़े हो सकते हैं। इससे चंद दिन पहले देखें ना वेनेजुएला में क्या हुआ था, और मेरे ख्याल में अमेरिका और इसराइल सिर्फ उसी गुमान में निकले कि हम वहां का प्रेसिडेंट अगर मिसकैलकुलेट किया, हाँ मिसकैलकुलेट हो गया ना, कि आपने वहां से किया और कोई नहीं बोला और दूसरे लोग आके बैठ गए, उन्होंने कहा जी हमें इक़्तिदार मिल गया और लोगों ने शादियाने बजाए। यहाँ ये नहीं हुआ और ईरान ने ये एक मैसेज दे दिया। और अब जो आने वाले दिनों में आप देखेंगे जो ईरान की जो सूरत हाल है, अभी जो 60 दिन है, और यकीनन ये मुआहिदा जिस दिन पहले दिन तेहरान का एयरपोर्ट खुला था, अमेरिकन टीम को वीज़े मिले थे, तो मैंने उस दिन ही कहा था कि मामलात काफ़ी हद तक बेहतर हो चुके हैं। अब चूंकि दोनों ममालिक अपनी फतह का इकरार कर रहे हैं, तो दोनों ने अपने आप को, अपनी कौम को वापस जाके बताना है। ईरान ने अपनी कौम को समझाना है। ट्रंप जो क्रिटिसिज्म फेस कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि विन विन सिचुएशन चाहिए दोनों ममालिक को, और वो मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन है। डॉक्टर साहब, जैसे अभी बात कर रहे थे हम कि इसको पेचीदा करने की कोशिश की गई इस जंग को, और इससे कबल अरब स्प्रिंग के नाम से हमने 2010 के बाद बहुत सारी मूवमेंट्स देखी, वहाँ पर सिविल वॉर्स का आगाज़ किया गया और उसमें भी बहुत सारे मज़मूम एजेंडा इसी तरह से शामिल थे। वो हम मिस्र की बात कर लें, शाम की बात कर लें, कुवैत या फिर हम इराक की बात करें, तो वहाँ पर हालात को ख़राब किया गया। और ऐसी ही कुछ अपीलें ईरानी अवाम से भी की जाती रहीं कि वो निकलें और इक़्तिदार पर कब्जा कर लें या फिर कुछ इस तरह के मामलात को आगे बढ़ाएं। लेकिन ईरान के अवाम ने इत्तेहाद का मुजाहरा किया, उनकी क़यादत ने इत्तेहाद का मुजाहरा किया। जी देखिए, ईरान जैसे बात की गई कि ईरान एक तहजीब का नाम है, ईरानी एक बहुत ही रेजिलिएंट नेशन है। और जिस तरह उन्होंने, मैं समझता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, जो कि दुनिया का एक ग्लोबल हेजेमॉन है, उसको जिस तरह उन्होंने यानी एक सेटबैक दिया है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा उनकी एक अचीवमेंट है। और वो ये है कि देखिए, ईरान जो अमेरिका है, ये एक बहुत बड़ी पावर है, वो ब्लू नेवी है उनके पास, और उनके पास दुनिया में 800 से ज्यादा ऑपरेशनल मिलिट्री बेसेस हैं। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन होती है, ये ग्रेट पावर्स के साथ हमेशा यही एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन कर लेते हैं, और उस स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन का फिर बाद में उनकी आने वाली जो नस्लें हैं वो भी उसका खमियाजा भुगतती है। तो मैं समझता हूँ कि वाज़ेह तौर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से यहाँ एक स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन हुआ कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज एक 22 किलोमीटर की एक जस्ट एक बहुत नैरोड किस्म की जो है ना, आप कह सकते हैं कि एक वो है, एक पैसेज है, वहां पे आके आप ईरान को कैसे डील करेंगे, जबकि उसके पास उसकी जो सारी तैयारी थी वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर की थी। उसको ये पता था कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है यहाँ पे आके हम पे अटैक करता है तो हमने उनको कैसे डील करना है। तो मैं समझता हूँ कि ईरान को एज ए नेशन इस चीज का पूरा क्रेडिट जाता है। दूसरी तरफ अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स ऑन पेपर मिलिटरीली तो उनका दुनिया में कोई कंपटीटर अभी तक कोई नहीं है, लेकिन एक एट द सेम टाइम ये जो ग्लोबल हेजेमनी होती है उसकी एक एक्सपेंस होती है, उसकी एक कॉस्ट होती है। उसके लिए आपकी जो इकोनॉमिक हेल्थ है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, जो कि इस वक्त कोई डाउट नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो इस वक्त उस पोजीशन में नहीं है कि वो अपनी ग्लोबल हेजेमनी को बहुत लॉन्गर टाइम के लिए सस्टेन कर सकें। तो मैं ये समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप हमने जो चीज देखी थी वो नेटो अलायंस की जानिब से भी कुछ शिकायतें की सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कि नेटो ने उस तरह से उनका साथ नहीं दिया। फिर दीगर एलाइज हैं जिसमें बरतानिया है, फ्रांस है, उन ममालिक से भी वो 12 अपीलें करते रहे हैं जब ये कॉन्फ्लिक्ट अपने पीक पे था, तो वहाँ से भी उस तरह का पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। ये फैक्टर कहाँ से आ गया, ये कैसे मुमकिन हो गया? देखिए, नेटो का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो आप कह लें कि उसकी जो वो है, यानी जो उसका
एजेंडा है उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है, उसका जो आर्टिकल 5 है कि an attack on a single state will be considered as an attack on all other states। जी। कि जो सारे मुल्क हैं अगर किसी एक पे भी अटैक होता है तो वो बाकी सब पे वो अटैक कंसिडर होगा। तो मैं समझता हूं कि यूरोपियंस जो हैं उन्होंने भी बड़ा इंटेलिजेंटली प्ले किया है कि उन्होंने अगर यूरोपियन कोई एक स्टेट भी कोई सिग्निफिकेंट पावर अगर इसमें आ जाता तो मैं समझता हूं कि शायद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इतना इजीली कन्विंस ना हो पाता इस पूरे पीस डील के लिए। कहां देखें, कहां ईरान जिसकी इकोनॉमी बहुत बुरी तरह जो है ना वो सफर कर रही है, और कहां यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये यूनाइटेड स्टेट्स का टेबल पे आना इटसेल्फ जो है ये इस बात की अलामत है कि बाकी यूरोपियंस को भी इसका क्रेडिट जाता है, मुस्लिम वर्ल्ड को भी क्रेडिट जाता है कि जैसे आपने पहले जो है ना बात की कि जी जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया, और यहां ईरान को भी क्रेडिट जाता है कि ईरान भी बार बार वजाहतें देता रहा कि हमारा किसी मिडिल ईस्टर्न कंट्री के अगेंस्ट कोई हमारे जारियाना अजाइम नहीं है, हम सिर्फ अमेरिकन जो स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन से हम उनको टारगेट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो सारी वॉर थी, दिस वाज द वॉर ऑफ द वर्ड्स, वेपन्स एंड विल्स। हर तरफ विल पावर का भी एक टेस्ट था, और उसमें पाकिस्तान भी शामिल था कि पाकिस्तान ने अपने डिप्लोमेटिक विल्स का इजहार किया। जी बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर असद फारूक साहब, आप हमारे साथ रहे और बात कर रहे थे इस्लामाबाद द टॉक्स और इसमें होने वाली पेशरफ्त के हवाले से। शनीला, जहां फेक न्यूज़ एक बहुत ख़तरनाक एलिमेंट है, वहीं पर स्पॉयलर्स ने कुछ ऐसी हरकतें भी करने की कोशिश की जो पकड़े भी गए। दीगर ममालिक में कुछ ऐसी तकरीबी कार्रवाइयाँ करने की कोशिश की जिसका इल्ज़ाम बाद में उन दोनों फ्रीकैन के ऊपर रखने की कोशिश की गई कि शायद इन मामलात को मज़ीद हवा दी जाए, आग को मज़ीद भड़काया जाए। उन चीज़ों को उन पर रद्दअमल ना देना और इस मामले को समझना कि ये स्पॉयलर्स का किरदार है और ये आग के ऊपर तेल छिड़कने का काम कर रहे हैं, कितना अहम रहा ये मोड़ और ये एलिमेंट। अब 2026 है, दुनिया काफ़ी समझदार हो गई है, जहाँ इतनी सारी टेक्नोलॉजी है वहाँ पर इतनी रिस्ट्रेन का मुजाहरा करना और चीज़ों को एक्सपेक्ट करते हुए रद्दअमल देना दिल के साथ। रिजवान, अभी ये जो प्रोफेसर साहब बात कर रहे थे ना डिप्लोमेसी की, तो जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो हमें कहा जाता था कि हेनरी किसिंजर की जो बुक है डिप्लोमेसी पे वो ज़रूर पढ़े। लेकिन मैं कहती हूँ कि अब जो हमारे स्टूडेंट आगे आएंगे तो हम उनको कहेंगे कि पाकिस्तान ने जो इस जंग को रुकवाने के लिए जो डिप्लोमेसी इख्तियार की, जो हिकमत अमली इख्तियार की, उसको ज़रूर निसाब में शामिल करें ताकि बच्चों को पता चले कि किस तरह से काम हुआ था। ज़रूर 2026 है और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाती है, लेकिन फिर भी जो फेक न्यूज़ होती है वो बड़ी जल्दी से जो है वो फैलती है, लोग उसको पर यकीन करना भी शुरू कर देते हैं। इन्हीं टॉक्स को लेके MOU हो रहा है या जो कल जो टॉक्स हुई हैं इनको लेके बड़ा प्रोपेगेंडा भी किया गया, बहुत दफ़ा इसको सबोताज करने की कोशिश की गई, पाकिस्तान के बारे में बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाया गया। कल भी बहुत सी ऐसी चीज़ें की गई कि जी वो नाराज़ हो गए, प्रोटेस्ट हो गए, ख़त्म हो गया, मामला ज़ीरो पे चला गया, लेकिन अंदर खाते जो चीज़ें चल रही होती हैं वो आम लोगों के सामने नहीं आती हैं। एक जो बहुत अच्छी बात थी वो ये थी कि मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा आके चीजों को बताया भी नहीं गया है। जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर आए थे उनके नुमाइंदे, उस वक्त भी मीडिया पे एक एक मिनट की आके रिपोर्टिंग नहीं दी गई थी, क्योंकि उसमें होता ये है कि एक चीज आपको एक लाइन बताई जाती, आप जाके पूरी कहानी गढ़ लेते हैं। और हमने इस दौरान देखा भी है कि तज्जिए जैसे किए गए, जैसे स्टोरी बनाई गई और पूरी कोशिश हो रही थी, असम्पशंस जो इजराइल की तरफ से खासतौर पे उनके मीडिया की तरफ से जो आती थी वो हर दफा यही स्टोरी होती थी कि बस जी मामला खत्म हो चुके हैं, अब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अटैक करने वाला है, ईरान खत्म हो जाएगा, ईरान में रिजीम चेंज हो जाएगी, इस टाइप की जो सारी चीजें थी वो चल रही थी। लेकिन जो बैकडोर डिप्लोमेसी पाकिस्तान दिखा रहा था उसकी वजह से इन सारी जो साजिशें थी, प्रोपेगेंडा था, उसका तोड़ हुआ और हमें ये MOU जो है वो होता हुआ नजर आया। अभी मसला वही है कि स्पॉइलर अपना काम करेगा। ये जो नेतन्याहू है या मोदी है, इनके बारे में तो ये भी पिछले दिनों कुछ इंटरनेशनल जरीदों ने लिखा ना कि कातलों का जो इंसानियत के कातल जो है उनका इकट्ठ हो गया हुआ है। तो वो जो प्रोफेसर साहब ने बात की थी ना मदरलैंड फादरलैंड, जी लबनान में नजर आ रहा है, कश्मीर में नजर आ रहा है, तो वो कर ही इसलिए रहे हैं कि वो दुनिया में अमन चाहते ही नहीं है। और फिर इंडिया को तो पाकिस्तान की ये जो फतह है, जो डिप्लोमेसी की कामयाबी है, ये हजम भी नहीं हो रही कि हर जगह पे कल जब से ये हमने देखा कि 19 जून की तारीख का ऐलान किया गया था MOU पर साइनिंग के हवाले से, फिर उसमें कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर ताखीर आई और एक दफ़ा फिर ये राज में रखा गया कि ये मुज़ाकरात, इस तकनीकी सतह के मुज़ाकरात होंगे, इसमें कौन कौन शिरकत करेगा, किन मौज़ूआत पर बात होगी। तो वहाँ पर एक दफ़ा फिर सफ़े मातम बिछ गए।
मुदस्सिर चौधरी, ये जो रवैया है भारत का, बड़ा खुला पैगाम है भारत के लिए भी, इसराइल के लिए भी, कि अमन पूरी दुनिया की रिक्वायरमेंट है और हम देखते हैं कि इंसानियत की बेहतरी इसी में है कि अमन कायम हो, लोगों के जो मसाइल हैं, गुर्बत इतना बड़ा मसला है, दहशत गर्दी ऑलरेडी इस दुनिया में अमन का दुश्मन बना हुआ है, फिर इक्तिसादी मामलात हैं, मुहाजरीन का मामला है, पनागुज़ीनों का मामला है, बच्चों के इन्फेंट्स के मामलात हैं, सेहत के मसाइल हैं, इतने सारे मसाइल का इंसानियत ने सामना करना है। तो ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट्स को लेके आना या फिर अपनी चुदराहट कायम करने का ख्वाब देखना, ये अभी तक कौन सी सदी में जी रहे हैं ये दोनों ममालिक की क़यादत जो है? देखिए, ये बातें ना अब 80s और 90s या 2000 की रह गई। अब आज का दौर जो है जंगों का दौर नहीं है। अब जो नई क़यादत जिन जिन ममालिक में मौजूद है ना, वो जंगें करनी नहीं चाहती, कहीं मजबूरन ना कहीं कुछ करना हो जाए, कन्फ्लिक्ट हो तो गोलाबारी या आपस में। अब जंग जो है वो इकॉनमी की जंग है, आपकी टेक्नोलॉजी की जंग है। जो इसमें कामयाब होगा वही आगे बढ़ेगा। अभी देखिए ना, यूएई के साथ, यूएई में अमेरिकन अड्डों को निशाना बनाया गया, वहाँ पे भी टारगेट किया गया, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक उन्होंने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया। चाहते तो वो भी मिसाइल फेंक सकते थे और ड्रोन फेंक सकते थे, लेकिन वो समझते हैं कि हमारा दुबई जो है वो बिज़नेस हब है, हम इसको जंग की लपेट में ले लेंगे तो हमारा नुकसान जो वक्ती तौर पे तो हम शायद को विन विन कर लें, 2-4 जगह मिसाइल गिरा के नुकसान पहुंचा लें, लेकिन फ्यूचर के लिए हमें कई साल लोगों को बताना पड़ेगा कि नहीं नहीं हम सेव हैं और यहाँ पे आके कारोबार करें। अब दुनिया इस तरफ नहीं जाएगी। और ये जो दो ममालिक हैं, इन दोनों का तो काम ही है, देखे ना, एक दूसरे को माँ कहता है, वो बाप कहता है, वो माँ बाप, ये तो औलादें बन चुकी हैं एक दूसरे की, और ये औलाद इस चक्कर में है कि उन्होंने इंसानियत को नुकसान पहुंचाना है। अब जंगों की ये पोजीशन है कि इनके जो अंदरूनी हालात हैं इनके मुल्क के अंदर, इसराइल के अंदर क्या मुजाहरे नहीं हो रहे नेतन्याहू के खिलाफ, क्या उसको हटाने की बातें नहीं हो रही, बात नहीं हो रही कि जंग बंद करो, जब वहां पे मिसाइल, हालांकि जितने ईरान ने मिसाइल फेंके वहां पहुंचे नहीं, चंद एक पहुंचे हैं, तो उसके बाद जो खौफ का समा था, आप सोच सकते हैं, आप कंपैरिजन करें कि उन्होंने पूरा गजा जो है वो उसकी सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया, उसकी पूरा डिमोलिश कर दिया और वहाँ पे बुलडोज़र फैला दिए और उन लोगों को, और उनको देखिए वो फिर भी आज जिंदा भी हैं, आज फिर वो नारे भी लगा रहे हैं और आज़ादी की बात कर रहे हैं, यहाँ दोगे, इसका मतलब है कि वो लोग भी तंग हैं। हिंदुस्तान के अंदर की पोजीशन देखें, मेरे ख्याल में 17 से ऊपर, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अलहदगी पसंद तहरीकें जारी हैं, वो कहते हैं हम इनके आइन और कानून और इस मोदी रजीम को नहीं मानते। कश्मीर की पोजीशन देखें, मणिपुर की पोजीशन देखें, वहाँ पे जो अकलीतें हैं, मुसलमान देख लें, ईसाई देख लें, इसके अलावा छोटी ज़ात के हिंदू देख लें, उनका जीना महाल हो चुका है। ये उनकी अंदरूनी सूरत हाल क्यों है कि जो आपने जंगें छेड़ी हुई हैं, जो आप बजट आपने लोगों की फलाह पे लगाना था, वो तो आप झोंक रहे हैं असला खरीदने में। आप अरबों डॉलर के जहाज ले रहे हैं, वो अलहदा बात है, आपको उसको चलाने नहीं आते। आप असला ले रहे हैं, उसको आपको मैनेज करना नहीं आता, क्योंकि आपकी फोर्सेस को ये नहीं पता कि इसको किस मौके पे प्रोफेशनल फौज हो तो मैनेज करें या ट्रेन हो, लेकिन चूंकि अब वो उनकी फौज भी पोलिटिसाइज हो चुकी है, हिंदुत्व नजरियात की प्रचार करती हुई दिखाई देती है भारतीय फौज भी, और अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए हमेशा उनके पास एक ही वतीरा रहा है, लेकिन अब वो भी पूरी दुनिया उसको कबूल नहीं करती। वो पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव को हवा देने की कोशिश करते हैं। उनके डीप फेक न्यूज़ एजेंसीज पकड़ी गई हैं जो कि पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग कर रही थी, फेक न्यूज़ फैला रही थी, पाकिस्तान को दुनिया भर में बदनाम करने की कोशिश करती थी। पाकिस्तान ने उसका भी अच्छे से इलाज किया और फिर फिजिकली भी हमने टैक्टिकली भारत का मई 2025 में इलाज किया और बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया कि भारत पाकिस्तान को ना कमज़ोर समझे, क्योंकि हम ऐसा जवाब देंगे कि उसकी नस्लें याद रखेंगी, और हमने जो जवाब दिया है यकीनी तौर पर उसकी नस्लें याद रखेंगी। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम इस्लामाबाद टॉक्स, मकाम स्विट्ज़रलैंड, नाम इस्लामाबाद, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। सर कैसे आप? ठीक है, खड़िए।